کہ کوئی شخص، کوئی گورنر یہ حکم دے رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تم لعنت کرو، ایک صحابی کو کہہ رہا ہے۔ ان چار میں سے کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی گورنر ان چاروں میں سے ہو سکتا ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب نے تو یہ بتا دیا کہ بنو امیہ کے دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کروائی گئی یا لعنت کرنے کا کہا گیا، نعوذ باللہ۔ لیکن میں آپ کو اس شخص تک لے جانا چاہتا ہوں جو کہ یہ کام کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاننے کی اصل ضرورت یہ ہے کہ وہ شخص تھا کون جس نے اتنی جسارت کی، جس نے اتنی گستاخی کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسی نازیبہ زبان استعمال کی۔ آخر وہ شخص تھا کون؟ تو تنقید، گالی اس سے بڑی بات، لعنت بھیجتے تھے۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جو آل البیت کے اوپر لعنت کرواتے تھے۔ انجینئر علی مرزا نے یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص، کوئی گورنر یہ حکم دے رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تم لعنت کرو، ایک صحابی کو کہہ رہا تھا۔ جیسا کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آل مروان میں سے ایک گورنر نے بلایا اور مجھ سے کہا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ باتیں کرو، ان کے خلاف باتیں کرو، ان پر سب و شتم کرو۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ اچھا تم یہ نہیں کہتے، تم یہ کرو کہ تم کہو کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا ابو تراب پر بھی میں لعنت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے اور ان کو یہ کنیت بہت پسند تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 6229 نمبر پر اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2409 نمبر پر موجود ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ تو انجینئر صاحب نے تو یہ بتا دیا کہ بنو امیہ میں سے ایک شخص نے، یا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ یہ کام کرواتے تھے، لیکن جو حدیث میں ہے کہ آل مروان میں سے ایک گورنر نے یہ کروایا۔ تو یہ کون سا گورنر تھا؟ اصل راز کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ کون تھا جس نے اتنی جسارت کی، جس نے اتنی جرت کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف گستاخی کرے، ان کی شان میں نازیبہ الفاظ کہے، ان پر لعنت بھجوانے کی نعوذ باللہ کوشش کرے۔ ایسا غلط آدمی، ایسا بدکار آدمی جو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی داماد اور ان کے چچا زاد بھائی کے خلاف اس طرح کی باتیں کرے، یہ بہت بڑی غلط حرکت ہے۔ ہم اس کو بہت ہی بری بات سمجھتے ہیں اور اس کا کبھی دفاع نہیں کر سکتے۔ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کو کبھی اچھا نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بہت ہی غلط شخصیت تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ شخص تھا کون، اس کا پتہ تو چلانا ہے نا لازماً۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسی اصل شخص تک لے کر جاؤں کہ وہ شخص کون تھا اور اس نے ایسی نازیبہ بات کیوں کی، اور ہم اس حدیث کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ شخص کون تھا۔ تو ہم بنو امیہ کے دور کو دیکھتے ہیں کہ اس میں سے یہ شخصیت کون ثابت ہوتی ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس کے بعد جب ان کے بعد ان کا بیٹا یزید خلیفہ بنا اور اس کی وفات کے بعد کچھ عرصہ کے لیے اس کا بیٹا معاویہ حکمران بنا اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دی حکومت، اور ادھر حجاز میں لوگوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ سے کہا کہ میں سارے بدلے تم نے اہل بیت پر جو ظلم کیا اس کے سارے بدلے لوں گا۔ اور وہ جو لوگ مدینہ میں رہ رہے تھے، مروان بھی اور باقی کچھ لوگ تھے، وہ ہجرت کر کے شام کی طرف چلے۔ جب مروان شام پہنچا تو یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید بھی اپنی امارت سے دستبردار ہو چکا تھا، اور بنو امیہ کے لیے وہ بہت ہی مشکل وقت تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا آپس میں بیٹھ کر، اور مروان کو اپنا امیر منتخب کر لیا، اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ مروان یہ امیہ کی اولاد میں سے تھا، لیکن یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک الگ لڑی تھی۔ وہ لڑی تھی امیہ کے بیٹے حرب کی، اور یہ لڑی تھی امیہ کے بیٹے
अबुल आस की दूसरी लड़ी है। इसमें अबुल आस के बेटे अफ़ान और हक्म, और अफ़ान में से उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और हक्म के औलाद में से जो ये लड़ी आ रही है इसमें मरवान तो आले मरवान जो है वो मरवान की औलाद की जो हुकूमत है उनको आले मरवान कहते हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत या उनके बेटे की हुकूमत, यजीद की हुकूमत, या कुछ महीनों के लिए मुआविया बिन यजीद की हुकूमत, ये आले मरवान में शामिल नहीं होती। तो जो लोग या जो शख्स ये बात करने वाला था वो आले मरवान के दौर से था, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में से कतन नहीं था, क्योंकि उनकी दौर को आले मरवान के दौर में शामिल नहीं किया जाता। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो भी शख्स था वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में नहीं था, वो बनु उमैया के दूसरे दौर जो मरवान बिन हक्म से शुरू होता है उस दौर में था कोई। तो मरवान बिन हक्म का दौर कब से शुरू होता है? जब यजीद की हुकूमत ख़त्म हो गई तो 64 हिजरी में मरवान का दौर हुकूमत आया शाम से। तो ये दौर जिसमें अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ लानत की नौज़ुबिल्लाह बात की गई वो 64 हिजरी से बाद का दौर है। और सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 91 हिजरी में तकरीबन हुई। तो ये दौर 64 हिजरी और 91 हिजरी के दरमियान का दौर है। अब देखना है कि ये कौन शख्सियत थी, क्योंकि हदीस में ये भी बात वाज़ेह है कि एक आमिल, एक गवर्नर ने ये मुझे हुक्म दिया, यानी कि वो दस्तूर नहीं था, या दस्तूर हो लेकिन इसका सबूत नहीं है, कुछ दिन हुआ हो लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है सही सनद के साथ, जिस तरह ये सनद है। इसमें यही बात है कि उस गवर्नर ने सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप अबू तुराब पर लानत कीजिए। तो ये दौर है 64 हिजरी से 91 हिजरी तक के दौर का। तो हम देखते हैं कि इस दौर में कौन कौन गवर्नर है मदीना के अंदर। तो पहले नंबर पर जब मरवान अमीरुल मोमिनीन या खलीफा बना, उस वक्त हिजाज के इलाके में अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत थी, और उनकी हुकूमत 73 हिजरी तक, जब तक उनको शहीद नहीं किया गया, वहां मौजूद रही। तो 73 हिजरी तक मरवानी हुकूमत इधर नहीं थी, मदीने में और मक्के में। 73 हिजरी में जब मरवान 65 हिजरी में फौत हो गया तो उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उसका बेटा अब्दुल मलिक हुक्मरान बना, खलीफा बना। तो ये दौर हो गया अब अब्दुल मलिक का। 65 हिजरी से लेकर 91 हिजरी तक कौन कौन आए थे? तो 65 हिजरी से जब दौर शुरू होता है अब्दुल मलिक का, तो उस दौर में ये वाक़या हो सकता है, या 91 हिजरी तक जो ये दौर है उसमें कभी 65 हिजरी से 86 हिजरी तक अब्दुल मलिक का दौर है, और उससे आगे 96 हिजरी से उसके बेटे वलीद का दौर है। तो इसी दो हुक्मरानों के दौर में ये वाक़या हुआ है। तो इन अदवार में गवर्नर मदीने के अंदर कौन लोग थे जिनसे ये बात हो सकती है? पहले हम वहां देखते हैं कि वो लोग कौन थे। तो पहले नंबर पर जब मक्का पर मरवान के बेटे अब्दुल मलिक का कंट्रोल करने के लिए हज्जाज पहुंचा, उसने मक्का पर कंट्रोल कर लिया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवा दिया। उसके बाद उसने मक्का का कंट्रोल किया और उसके बाद वो पहुंचा मदीना में, और मदीना वालों को उन्होंने डरा धमका कर उधर भी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। तो पहले नंबर पर हज्जाज बिन यूसुफ वहां कुछ अर्सा के लिए गवर्नर रहा, और उसके बाद यहया बिन हक्म जो मरवान का भाई था और अब्दुल मलिक का चचा था, और अब्दुल मलिक ने यानी अपने चचा को मदीना का गवर्नर लगाया। उसके बाद 1 साल के अरसा या उससे कुछ ज़्यादा 74 हिजरी से 75 हिजरी तक ये यहया बिन हक्म रहा उधर का गवर्नर मदीना मुनव्वरा का। उसके बाद फिर उन्होंने उसको हटा दिया और 75 था 81 हिजरी तकरीबन अबान बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरा गवर्नर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अबान, वो गवर्नर बना। और फिर 81 हिजरी में तकरीबन उसको भी हटा दिया गया, और उसकी जगह 81 से 86 हिजरी तक हिशाम बिन इस्माइल मखजूमी अब्दुल मलिक का ससुर था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक का नाना था।
ये गवर्नर बना चौथे नंबर पर इस दौर में। और 5वें नंबर पर 86 हिजरी से जब वलीद हुक्मरान बना, 86 हिजरी से 92 हिजरी तक उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह गवर्नर रहे मदीना के। अब ये 5 गवर्नर बने, हजाज बिन यूसुफ, याहया बिन हक्कम, अबान बिन उस्मान, हिशाम बिन इस्माइल मखजूमी और आखिर में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। और तकरीबन सब लोग मानते हैं कि ये काम करने वाला उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कतई नहीं हो सकते। अब इसके बाद कौन बचे? याहया बिन हक्कम, हजाज बिन यूसुफ, अबान बिन उस्मान और हिशाम बिन इस्माइल मखजूमी। इन 4 में से कोई शख्स हो सकता है, कोई गवर्नर इन चारों में से हो सकता है। और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कौन सा गवर्नर था जिसने ये बात कही। तो इसमें सोचने वाले, समझने वाले जहन में जब बात बैठती है तो हिशाम बिन इस्माइल मखजूमी, इनको लोग नहीं जानते, सिर्फ तारीख का जो ज़्यादा मुताला करते हैं वो इनका नाम जानते हैं। अबान बिन उस्मान के बारे में भी कोई ऐसी बातें मशहूर नहीं हैं। याहया बिन हक्कम, ये ख़ास उनका समझो उनके ख़ानदान का है, उनके ख़ानदान के, वैसे तो अबान बिन उस्मान उसी ख़ानदान के हैं, लेकिन जो ज़्यादा गहरी रिश्तेदारी है वो 2 बंदे हैं, याहया बिन हक्कम और उमर बिन अब्दुल अजीज, जो इसी मरवान के ख़ानदान के हैं। तो उमर बिन अब्दुल अजीज को तो शामिल नहीं कर सकते। बकिया बचा याहया बिन हक्कम, ये भी इतनी मशहूर नहीं है कि इसने इस तरह की बात क्योंकि जो लोग कुछ हैं इस बारे में, जैसे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और हजाज बिन यूसुफ, ये ख़ास शख्सियात हैं जिनके बारे में गलत बातें मंसूब हैं और उनसे कुछ गलत बातें साबित हैं और कुछ मनगढ़ंत में, लेकिन गलत बातें या जुल्म व सितम इन लोगों से मशहूर है और इनसे साबित भी है। तो सब लोगों की जो नज़र बैठ सकती है वो हजाज बिन यूसुफ, जो पहला गवर्नर है कुछ अरसे के लिए। इसके बारे में भी कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है कि यही शख्स था, हो सकता है इन्हीं 4 में से, लेकिन हजाज बिन यूसुफ, याहया बिन हक्कम, अबान बिन उस्मान और हिशाम बिन इस्माइल मखजूमी, इन 4 में से कोई हो सकता है। लेकिन जब कोई शख्स इन 4 का कैरेक्टर देखेगा, इन 4 के हालात देखेगा, तो बाकी तीनों ज़्यादा इतने इन मामलात में मशहूर नहीं है। एक बंदा हजाज बिन यूसुफ मशहूर है इन कामों में। हो सकता है यही गवर्नर हो जिसने हुक्म दिया हो, लेकिन ये सिर्फ हदीस में सिर्फ यही बात है कि उस गवर्नर ने हुक्म दिया था। ये हदीस में कभी नहीं आया कि वो आले मरवान या बनु उमैया हमेशा के लिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लानत भिजवाते थे, बल्कि एक गवर्नर ने एक सहाबी को कहा कि तुम ये काम करो और उसने इनकार कर दिया। तो इसका तो कहीं सबूत नहीं कि ये हमेशा होता रहा। हाँ, ये सबूत है कि उस गवर्नर ने कहा, और जिस गवर्नर ने कहा उसने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की और वो बहुत ही गुमराह गलत राह पर चलने वाला था। लेकिन वो कौन था? इन 4 में से एक हो सकता है, और ज़्यादा शक सब लोगों का, मैं क्या कहूँ, जिसने भी ये बात सुननी है, जिसको पता चलना है, उसका शक हजाज बिन यूसुफ की जाएगा। वल्लाहु आलम, जो बंदा था अल्लाह ताला ही वल्लाहु आलम बेहतर जानता है, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोगों का शक इधर ही जा सकता है जो पहला गवर्नर था, और इन्हीं 4 से तकरीबन अलग कोई बंदा नहीं था। इन 4 में से कोई एक हो सकता है, और ज़्यादा शक इसी शख्सियत की तरफ जाता है कि ये हो सकता है। तो आले मरवान में से सारे लोग, ये कहीं साबित नहीं, और अब्दुल मलिक उस वक्त हुक्मरान था, उसका आर्डर भी कहीं साबित नहीं कि उसने हुक्म दिया था।